پتہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ریاست جموں کشمیر مز لارجسٹ پارٹی اگرچہ نیشنل کانفرنس ونکس حکومت ام پتہ دویم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تو گاندربلس مز تہ پتہ یہ الیکشن سپد تو تر مز سیکنڈ ریس مز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تو الحمدللہ اس نی کنگن گاندربلس مز لگ بھگ 50,000 ووٹ بخوبی تہ پتہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کۭژاہ کٲم کر پننس کم وقتس مز یم سات 2010 مز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بنے انقلابی قدم تلک تم پتہ آئی دویم ٹرن اس سہ آو کم وقتس مز 2014 مز مگر اگر وچھو یم سات 2010 مز حکومتس آئی قٲضۍ صٲب تمہ سات یت MLA گاندربل تہندس نیترتوس مز تو مفتی صٲب چیف منسٹر اس کۭژاہ کٲم کر اس کوتاہ ونو اس کۭژاہ کٲم کر اس کتہ پٮ۪ٹھ کرو شروع اس کروا شروع فشریز کالیج اس کروا شروع یس یہ ہائر سیکنڈری اس بنو یہ ڈگری کالیج اس کروا شروع اس کۭژاہ کامہ کر بہ ون بہٕ تمہ سات کنگن کانسٹچوینسی ست اس فلٹریشن پلانٹ اس آب وسان ڈائریکٹ امہ مز کنالہ مز تو تت تہ گو فلٹریشن پلانٹ تٔتھۍ وقتس مز اس آو DC آفس یہ تہ پانس پتہ تُہۍ چھو گاندربلک یہ گاندربلس مز تت مہاراج سٕنٛدِ وقتہٕ بنیمٕژ اکھ ہٹ اکھ تٔتھۍ منٛز اوس تحصیلدار سُہ کوٹ کمپلیکس سُہ تہِ بنوو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی باقی یتھ منٛز یُس خاکہ أسۍ پیش کرو سُہ کرِ شاہین صٲب تو شاہین صٲبس چھُس بہٕ دعوت دِوان سُہ کرِ باقی کتھ. ہمارا آپ لوگوں سے بات کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کل یہاں پہ ہمارے آنریبل ڈپٹی چیف منسٹر سریندر چودھری صاحب تشریف لائے تھے اور آپ لوگوں سے ہی دوران گفتگو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، کچھ باتیں مناسب بھی ہیں اور کچھ ان پارلیمنٹری لینگویج جو انہوں نے استعمال کی، آفیسروں کو دھمکایا یا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی، تو اس ضمن میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے زونل پریزیڈنٹ گاندربل میرے بھائی شکیل صاحب نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کی، لیکن آپ سے میں یہ عرض کروں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، جب سے اس کا وجود آیا آج تک جو ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں ان کا اگر آپ شمار کریں تو پچھلے 70 سال میں اتنی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کسی بھی سرکار نے نہیں کی ہیں جتنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کی ہیں. اب ہم گاندربل کی بات کرتے ہیں تو گاندربل میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں چودھری صاحب، آپ شاید واقف نہیں یہاں کی ہسٹری کے. 1933 میں جب یہاں پر نیشنل کانفرنس تھی، اس کا کنورشن ہوا 1939 میں مسلم کانفرنس کا نیشنل کانفرنس میں، تو جناب چودھری صاحب اس وقت ریاست جموں و کشمیر میں UT نہیں تھی، یہ ایک آزاد ملک تھا، یہاں کا وزیر اعظم تھا اور اس وقت کے رہنما کشمیریوں کے لیڈر شیخ محمد عبداللہ نے حصول اقتدار کے لیے وزیر اعظمی چھوڑ کے وزیر اعلیٰ پر اتفاق کیا. جب شیخ محمد عبداللہ وزیر اعلیٰ بنے ریاست جموں و کشمیر، پہلے وزیر اعظم تھے نا، وزیر اعظم بنے ریاست جموں و کشمیر کے، تو ان کی بنیاد تھی حلقہ انتخاب گاندربل. اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کی صورت میں دوبارہ حصول اقتدار، نہ صرف حصول اقتدار کی تھی، وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کی صورت میں آئے، ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ کی صورت میں آیا، اب ان کا پوتا UT کے وزیر اعلیٰ کی صورت میں آیا. تو ان 70 سالوں میں چودھری صاحب میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے دکھائیے شیخ عبداللہ سے لے کے عمر عبداللہ تک گاندربل میں، جس گاندربل نے ہمیشہ آپ کو سر پہ اٹھایا، کسی مقامی لیڈر کو انہوں نے پلپنے نہیں دیا، صرف شیخ محمد عبداللہ. تو آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوشن دی گاندربل کے لیے؟ کتنے پروجیکٹ بنائے آپ نے گاندربل کے لیے؟ کتنے کالج بنائے آپ نے گاندربل کے لیے؟ آئیے اب میں بتاؤں 2002 کے بعد میرے گاندربل میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور مفتی صاحب کی قیادت نے کیا کیا. ہمارا گاندربل کالج بنا،
हमारी 2 डेवलपमेंटल अथॉरिटीज बनी। सबसे बड़ी बात यह है चौधरी साहब, जिला गांधरबल बना, जिला गांधरबल, और 4 तहसीलें बनी, तहसील लार, तहसील वाकुरा, तहसील गुंद, और ब्लॉक तो मुझे याद ही नहीं कितने बने, नियाबतें कितनी बनी वो तो मुझे याद ही नहीं है। ज़रा मुझे उमर अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला साहब तो अगर अभी आए, फारूक अब्दुल्ला से कहें, वो तो सीनियर मोस्ट 2 बार वज़ीर आला रहे, क्या कभी आपने एक नियाबत भी गांधरबल में सेंक्शन किया? क्या कोई पटवार खाना ही सेंक्शन किया? वही बता दो, हाँ यार हमने फलाना पटवार खाना। क्या कोई बैतुल-खुला बनाई है? छोड़ो बड़े कामों को। इन 70 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ, और सुरेंद्र चौधरी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, एक बैतुल-खुला दिखाओ। उसके अलावा गांधरबल के अलावा अगर मैं कंगन चलूँ, कंगन में मैं जनाब क्या चौधरी साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा, रिकॉर्ड निकालो, आप PWD के मिनिस्टर भी हैं, वायल पुल से लेके सोनामर्ग तक 1 फुट ब्रिज मुझे दिखाओ 70 सालों में, 1 फुट ब्रिज नाला सिंध पे, 1 फुट ब्रिज नाला सिंध पर दिखाओ आप। क्योंकि कंगन की जो टोपोग्राफी है शायद आपने देखी होगी, बीच में नाला बहता है, दाएं बस्ती है, बाएं बस्ती है, पुल ज़रूरी है। और मैं पूछना चाहता हूँ, आप ज़रा अपना रिकॉर्ड निकाल के देखें कितने पुल बने 70 सालों में। तो आइए मैं PDP के दौर की बात करूँ, 11 से ज़्यादा पुल बने कंगन में, वायल पुल से लेके सोनामर्ग तक 11 पुल बने हैं। जो DPR उस वक्त बना, पुल बाद में तैयार हुए। इवन पिछले ही दिनों में एक पुल का इफ्तिताह उमर साहब भी करने आ गए थे, जबकि वो पुल 1 साल से चालू था। ठीक है, 11 पुल, फिर वहाँ के हायर सेकेंडरी, हॉस्पिटल, रोड्स, ये सारे जो वहाँ हुए। अच्छा, सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, गांधरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या क्या मैं गिनूँ, क्या क्या मैं गिनूँ, और में क्यों नहीं हुआ। मानसवाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमने 70 साल से ऐसे काम किए। 70 साल से अगर देखेंगे गांधरबल से वोट लेके भी हो गए हैं। आपका सवाल हज भी जानते हैं। मुझे आप बोले मीडिया फ्रेटर्निटी से, मेरा आपसे सवाल, आपसे भाइयों से सवाल है। आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस तनकीद कस रही है, ये तनकीद किस बारे में? क्या कोई इलेक्शन चल रहा है? उनके मिनिस्टर जहाँ पे भी दौरे पे जाते हैं, काम करने के बजाय PDP को दोषी ठहराते हैं। उनकी मिनिस्टर साहिबा सकीना यूसुफ साहिबा पिछले ही दिनों में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे दौरे पे गई थी और PDP पे तनकीदा कहा था। मुझे आप बताइए, आपसे मेरा सवाल है, क्या इलेक्शन चल रहा है? इलेक्शन में जितने तनकीदें कसने थे हम लोगों ने कसे, उन लोगों ने कसे। हम ये भी मानते हैं, हम ये भी एग्री करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत मिली, एक बड़ा मैंडेट मिला, एक वोट मिला। अब अपने वो जिम्मेदारियों से वो क्यों भाग रहे हैं? अगर कल डिप्टी CM यहाँ पे आए थे, उनको प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना था, तो PDP पे निशाना क्यों साधा? काश उनके पीछे जो लोग थे वो चले चाटे लोग थे। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, काश उनमें उनका ज़मीर जिंदा होता, वो उनको कहते कि PDP ने 2002 में कितने काम किए हैं गांधरबल में। हमसे आप गिनवाइए। आप लोग अगर अपोजिशन करना चाहती है तो पॉजिटिव अपोजिशन कीजिए। अगर आप तनकीद करना चाहते हो तो हम तनकीद आपकी करेंगे। देखिए, हम 1932 से नहीं कहेंगे, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, फिर 39 में आप लोगों ने NC कर दिया। उसको किसके कहने पर कर दिया? उन लोगों के कहने पर कर दिया जिनको आप कल तक गंदी नाली के कीड़े कहते थे। देखिए, कांग्रेस वजूद में आई, उसकी अपोजिशन वजूद में आई, आप लोगों ने कांग्रेसियों को गंदी नाली का कीड़ा कह दिया, फिर उनके साथ आप लोगों ने हाथ मिला दिया। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम 1947 के बाद 1952 की बात करेंगे, यहाँ के इतिहास आप लोग खोलो, इतिहास के पन्ने खोलो, यहाँ के पढ़े लिखे जवान को पता होना चाहिए क्या हुआ। 1952 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरीके से धोखाधड़ी की है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1953 को छोड़ो, आप लोग 1952 को छोड़ो, 1977 में क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये नहीं कहा गया कि 370 कुरानी कोई आयत नहीं है, अगर इसको हटाया भी जाए कोई फायदा नहीं है? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं कहा है? अब 1977 को छोड़ो, 1987 में देखिए मफ आया, एक अपोजिशन की सूरत में मफ आया। क्या हम सभी नहीं जानते हैं मफ जब आया, मफ को किस तरीके से 87 में रिगिंग की? और यहाँ पे रिगिंग के जिम्मेदार कौन है? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? क्या यहाँ के लोगों के हाथ में बंदूक थमाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? क्या मोहम्मद यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? क्या मफ के अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सेप्ट किया था, उसके बाद उनका भी एक प्रोसेस था कि वो डेमोक्रेसी में हिस्सा ले, इलेक्शन में हिस्सा ले, क्यों चोरी हुई, क्यों रिगिंग हुई, क्यों 2 हिस्से कर दिए कश्मीर के? उसके बाद छोड़िए, अब 87 का भी आप छोड़िए, अब 1996 में आए हैं। आपने इखवान, आपने पोटा, आपने PSA, आपने STF, आपने क्रैकडाउन का सिलसिला जारी किया। क्या इसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? देखिए, हम मानते हैं एक बड़ा मैंडेट आपको मिला है, हमने माना कि हमारे 3 जो है MLA जो है वो जीत के आए हैं असेंबली में, बड़ा मैंडेट तो आपके पास है, क्यों आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो? आपने 12 गैस सिलेंडर का वादा किया, दिया? आपने फ्री राशन का वादा किया, दिया? आपने 1 लाख रोजगार, हाँ 1 लाख में मैं बोलता हूँ, एक बंदे को नौकरी मिली, आप बोलो वो उसके एडवाइजर को नौकरी मिली।
उन्होंने कहा हम 1 लाख जवानों को रोजगार देंगे। हाँ, एक को उन्होंने एडजस्ट कर दिया, एडवाइजर कर दिया। जो सोगामी के रहने वाले हैं गांधरबल में इंटरफेयर करते हैं, और कल हमारे यहाँ पे गांधरबल के कुछ उनके अपने साथियों को बोलने दिया, वहां से हारे और हमारे कंधों पे यहाँ पे सवार होना चाहते हैं। हमारे डिप्टी सीएम, हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जम्मू से गांधरबल का खाका पेश करने के आले, उससे बोले गांधरबल को आपको कितना पता है? वो कह रहे हैं हॉस्पिटल के पीछे जो रोड है ये पुराना रोड है। उससे पूछे, वो खुद कहते हैं पुराना रोड है। पुराना तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब 2 बार यहाँ पे वज़ीर आला बने, फिर उमर अब्दुल्ला साहब स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर रहे। क्या किया उन्होंने? अब एक पुल की बात है। और दूसरी बात, इनको स्टेट के पीछे इसलिए पड़े हैं, स्टेटहुड के पीछे, ताकि इनको अफसरों के ऊपर डंडा दिखाना है। इसको उन्होंने कल खुद साबित कर दिया। हमारे एक्शन साहब को कहते हैं कि मैं 200 किलोमीटर आपकी ट्रांसफर कर दूंगा, उसको ये नहीं पता। उसके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मेरे हाथ पीछे से बंधे हुए हैं। जनाब वो खुद कहते हैं बड़ी तकरीब पे 15 अगस्त पे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं जनाब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। डिप्टी सीएम कहता है हमारे एक्शन को मैं आपको 200 किलोमीटर ट्रांसफर करा दूंगा। जनाब ये कहाँ का मामूल है, कहाँ का रवैया है, कहाँ की दुगनी पॉलिसी है? और गांधरबल की आवाम ने आपको वोट दिया है जनाब, किस सूरत में दिया है? चाहे आपने टोपी उतारी, चाहे आपने गिड़गिड़ाया, चाहे आपने रोया, चाहे आपने वहाँ कुल्लू और डुल्लू के इलेक्शन में, हमें पता है किस किस को आपने यहाँ पे भेजा था इलेक्शन जीतने के लिए और कितना पैसा आप लोगों ने खर्च किया। अब इतिहास के पन्ने हमसे खोलने पे मजबूर रखिए। हिस्ट्री हम भी जानते हैं, हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है। और आप, अगर आपसे सवाल है, आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस गोजमा ब्रिज की तैयारी कर रही थी, 14 साल से कहाँ थे? कौन सी तैयारी हुई? उससे पहले क्यों नहीं बनाया? एक पुल की आपने बात की, शादीपुरा ब्रिज की, मुझे बोले 1947 के बाद तो वोट भी गांधरबल से लिए। अगर आप पीडीपी की बात करोगे, पीडीपी का वजूद जो है 2002 में आया, तो 2002 में 5 साल खाली उन्होंने हुकूमत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 4-5 बार इक़्तिदार में आई। और ये एमएलए, जो एमएलए आज मिनिस्टर साहब बने हैं, इनकी तो खुद शुरुआत पीडीपी से हुई है। उस टाइम पीडीपी अच्छी जमात कैसी थी? उस टाइम पीडीपी सराहने के काबिल कैसी थी? आज पीडीपी के आप तनकीद कस रहे हो। जनाब आप लोग देखिए, आज कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीधे कहूंगा आज कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है। आपने तनकीद कस दी इलेक्शन में, आपने बाजी मार दी, लेकिन अपने जो अपने वादे किया ना इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उन पे खड़े तो उतरे आप लोग आप लोग को दे रहे हैं। शकील साहब के साथ कंटिन्यू करते हुए मैं ये गुजारिश करूंगा कि जहाँ तक चौधरी साहब का ताल्लुक है, वो तो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर वो सबों के हैं, चाहे स्टेट में, चाहे यूटी में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, जो भी है। तो गांधी थे, उन्होंने पब्लिक दरबार लगाना था, सब लोगों से मुतालबात पूछने थे, उनका हल ढूंढना था, उनके रास्ते ढूंढने थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ ये लोग जाते हैं, 3 मेंबर हैं, उनसे ये इतना क्यों डरते हैं? 52 मेंबर होंगे, ये 3 मेंबर पीडीपी वालों से क्यों डरते हैं? हर जगह ये सिर्फ पीडीपी का ही वो डंडोरा पीटते हैं। मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की अचीवमेंट्स का बताऊं, जैसे कि अभी शकील साहब बात कर रहे थे, 87 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में सिर्फ जम्मू कश्मीर के हर बस्ती के जो कब्रिस्तान थे उनको नहीं भरा, बल्कि इस 87 के इलेक्शन घोटाला ने बड़ी बड़ी ताकतों को हिला के रखा। ये इन्फेक्शन हिंदुस्तान तक पहुंचा, पाकिस्तान तक पहुंचा, चाइना तक पहुंचा। ये सारा दिन फारूक अब्दुल्ला का और 87 के इलेक्शन रिगिंग का है। हाँ, इस दौर में इन 10 महीनों में एक काम किया, चूँकि डे 1 से 47 से यहाँ पे 2 पार्टियाँ हुआ करती थी जम्मू व कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर। और जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर ने कई बार इलेक्शन लड़ा और एक बार मेरे ख्याल में 5 से ज़्यादा सीटें थी उनकी असेंबली में। तो क्या वो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन या जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था? कहीं ये लड़ा था। और वो लोग जो थे वो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहे हैं। लेकिन एक काम ज़रूर किया सकीना यतू ने कि उसने, क्योंकि 47 से यहाँ मुकाबला था जमात इस्लामी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामिया को हमेशा दबाती रही। उसके बाद जब हालात नागुफ्तबे हो गए जम्मू कश्मीर में, इनको और मौका मिल गया। और आज जो इतने अच्छे स्कूल उठ के चल रहे थे, इतने अच्छे स्कूलों पे बच्चों की तालीम हो रही थी, 100% वो लोग एजुकेशन में रिजल्ट वो दे रहे थे डिग्रियों में, आज उनके लिए एक नया कानून सकीना यतू ने पेश किया। डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि ऊपर से फाइल में जो हमने लिखा था वो अप्रूव नहीं हुआ। मैं स्कूलों की बात करता हूँ, तो आपको फाइल प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? फाइल इसलिए प्रोसेस की कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो जमात इस्लामिया है, कुछ बाकी बच्चा खुचा है, वो इन स्कूलों के ज़रिए हम उसको रगड़ लें। लेकिन क्या वो स्कूलों में वो स्कूल कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी सैंक्शन नहीं है, वो आइन के अंदर नहीं चल रहे हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही है। तो अब जो आपका सवाल है, मैं शकील साहब से कहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब था आपका, जो डिप्टी सीएम ने कल वहाँ पर बात छेड़ी,
उन्होंने बताया कि अगर पीडीपी बीजेपी के साथ कोलिशन नहीं करती शायद 370 अभी भी सिक्योर था। तो इसके बारे में क्या वजूहात हुए जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ कोलिशन की? इसके बारे में और उसने कहा पिछले 11 सालों से जो खराबी पीडीपी और बीजेपी ने की, हम पहले वो ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद हम तामीर और तरक्की कर सकते हैं। देखिए, आपका पहला ये सवाल है, जिस टाइम उमर साहब हमारे आजकल के जो यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, जिस टाइम वो एनडीए सरकार में मिनिस्टर थे, क्या उस टाइम बीजेपी ठीक थी? फिर जब पीडीपी ने कोलिशन की, आप मुझे बोले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक गवर्नमेंट बनी, यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट। मुझे बोले जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, क्या उन्होंने आर्टिकल के साथ छेड़ा? जब उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया पीडीपी के साथ, उसके बाद ही 2019 में उन्होंने यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जो है अमल में लाया, 35 लाया। मैं आप लोग पढ़े लिखे हो कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि हाँ, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म होगा। बीजेपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जनाब, उनको NH-44 दिखाने की जरूरत नहीं थी, उनको जम्मू कश्मीर का रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं थी। एक बड़ी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी को आप कहते हो कि पीडीपी ने रास्ता दिखाया, ये कहाँ की हिमाकत है और ये कौन सी बात है? एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो आज पिछले 15 साल से इक़्तिदार में है, आप कह रहे हो उनको आपने रास्ता दिखा दिया? क्या उनको रास्ता पता नहीं था? हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव पे उनके साथ कोलिशन की थी, और जब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं खड़े उतर पाए, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ किया। सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद उन्होंने आर्टिकल छीना। ये आर्टिकल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उतना ही है जितना पीडीपी का है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जितनी बार आई, उन्होंने मुझे बोला कब रेजोल्यूशन पास किया अपनी असेंबली में, जब उनकी फुल मेजॉरिटी थी, जब 1/3 मेजॉरिटी थी, कोई रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में 370 को पास करने के लिए या उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको परमिट करने के लिए? क्या इसके आप जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं ठहराओगे? जिस टाइम शहर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला असेंबली चला रहे थे एज चीफ मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं छोड़ूंगा, उस टाइम 1/3 मेजॉरिटी किनके पास थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की। कोई रेजोल्यूशन पास किया? फारूक अब्दुल्ला साहब कितनी बार हमारे चीफ मिनिस्टर बने, हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट जब थी, क्या कोई रेजोल्यूशन पास किया? नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब एक बार बने, कोई रेजोल्यूशन पास किया? नहीं। उल्टा जब यूटी की असेंबली में हमारे असेंबली मेंबर ने रेजोल्यूशन पास किया 370 पे, उन्होंने नकार दिया, क्योंकि उन्होंने वोट लिए थे लोगों को पिछले इलेक्शन में 370 के नाम पे, 38 के नाम पे, लेकिन वो लोग भूल गए। अब वो अपने जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। हमारा यही है, देखिए हम उन्हें कहते हैं आपको इक़्तिदार मिला है, आपको कुर्सी मिली है, अब एक काम कीजिए, आप लोगों ने जो वादे किए हैं लोगों से, उन पे खड़े उतरे, यही हमारा उन सवाल है। शुक्रिया।